Everyone, I am Aditya and you are watching German class. Welcome back to the new session of Test and Usage. Here I have written some sentences and you have to write the correct answer in comment below. Every sentence, each sentence has three options, 1, 2, 3, and you have to tell what is the correct answer, what is the correct option. So this way you can test your grammar, your language skills, and of course there is a good practice of entire portion of grammar which is essential for B1 and B2 level. So test and usage, check your level B1 or B2. These kind of videos are available in a playlist with the name Test and Usage or Corrector. There is a playlist and you will find so many videos like this. And like and subscribe the channel if you find it interesting. Your comment and feedback is very important for me. Please leave your comment and feedback. How do you find it? Let's begin. First sentence, ich gut informiert. सेंटेंस देखो ध्यान से, सेंटेंस को पहले पढ़ोगे, रीड द सेंटेंस वेरी केयरफुली 2 times 3 times, पॉज द वीडियो एंड देन थिंक. वीडियो पॉज करके आप सोचोगे करेक्ट आंसर क्या होगा. 1, 2 और 3 ऑप्शन. Ich lese gut informiert, ich habe, ich bin. ये प्रॉपर फिक्स पैटर्न है, इसको बोलते हैं ich bin gut informiert, मीन्स आई एम वेरी वेल इन्फॉर्म्ड, मेरे को बहुत अच्छे से पता है. ich bin nicht gut informiert, ich bin gut informiert. This is the way we say, don't write habe, it's not correct. Ich habe gut informiert. Information or informieren is also verb, but in this sentence ich bin gut informiert means you will see always sein verb. Means I am good informed, I am well informed, I know the information or details. So ich bin gut informiert. If you say ich habe gut informiert, then gut should be removed, then it makes sense. Ich habe informiert, then it means I have informed. मैंने inform कर दिया है, मैं inform कर चुका हूँ, वो मतलब फिर अलग है. बट यहाँ पे अभी gut है, means ich bin gut informiert. मेरे को अच्छे से पता है, I am well aware. Ich kenne Frau. कौन सी फ्राउ? आई नो द वुमेन. 1, 2 और 3. देखो 3 ऑप्शन और ध्यान से सोचोगे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा. Zweisprache, zweisprachiges, zweisprachige. मीन्स 2 लैंग्वेज बोलने वाली वुमेन. मैं जानता हूँ जो 2 लैंग्वेज बोलती है ऐसी वुमेन को. Ich kenne. तो वुमेन यू नो आर्टिकल डी, तो एंडिंग तो ई होना चाहिए. तो पहले एलिमिनेशन मेथड करो. व्हाट इज रॉन्ग? दिस इज रॉन्ग. नाउ 1 और 3. So Zweisprache another, there is no word like this. So this is correct. Zweisprachige, a person who speaks 2 languages. Dreisprachige, a person who speaks 3 languages. So eine zweisprachige Frau. Es gibt noch eine Chance, eine fremde Sprache lernen zu lernen. There is one more chance to learn a foreign language. थिंक अबाउट इट. सोचो, इसको बार बार सोचो, रीड करो, इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हो आंसर्स. ये सेंटेंसेस आपको मिलते हैं B1 B2 के एग्जाम मॉडल टेस्ट पेपर में. इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं. यू शुड बी अवेयर अबाउट दीज फॉर्मेशन, दीज सेंटेंस फॉर्मेशन. दीज आर वेरी एसेंशियल इफ यू आर इन B1 B2 और प्रिपेयरिंग फॉर योर अपकमिंग एग्जाम. सो सू लर्नन, दिस इज सू प्लस इन्फिनिटिव, आपने पढ़ा होगा. एस गिव नो काइने चॉन्स से कॉमा, eine fremde Sprache zu lernen. सू के बाद वर्ब आएगा यहाँ पे. दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग. वी आर नॉट कॉन्जुगेटिंग एनीथिंग, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है. सब्जेक्ट ऑलरेडी यहाँ पे था, हमने कॉन्जुगेट कर दिया है. अब सू प्लस वर्ब आएगा. Ich lese einen Text auf Deutsch, in Deutsch, von Deutsch. मैं एक टेक्स्ट पढ़ रहा हूँ जर्मन में. आई एम रीडिंग अ टेक्स्ट इन जर्मन. ये बोलते हैं इंग्लिश में. मैं जर्मन में टेक्स्ट पढ़ रहा हूँ, एक पैराग्राफ है जर्मन में पढ़ रहा हूँ. Ich lese always, हमेशा, जब भी ऑफ डॉइच, ऑफ इंग्लिश, ऑफ स्पेनिश, हमेशा किसी भी मीडियम, किस मीडियम में पढ़ रहे हो आप, हिंदी में पढ़ रहे हो, ऑफ हिंदी, हमेशा ऑफ आता है. Ich schreibe einen Text auf Deutsch, auf English, auf हिंदी, auf स्पेनिश. इन नहीं आएगा, ध्यान रखना, गलत है, ये भी गलत है. ऑफ डॉइच फिक्स्ड है, ये याद रखना. Leider kann ich nicht beurteilen, gut sein Deutsch ist. beurteilen है. अनफॉर्चुनेटली आई कैन नॉट जज, मैं जज नहीं कर सकता. गुड हिज जर्मन, ऑफ वी वेल. देखो, सोचो ध्यान से, वीडियो को पॉज कर सकते हो आप. पॉज द वीडियो एंड देन प्ले एंड चेक योर आंसर. आई कैन नॉट जज, मैं जज नहीं कर सकता उसकी जर्मन कितनी अच्छी है. हाउ गुड इज हिज जर्मन. वी गुड, ऑफ नहीं आएगा, देन नहीं है. I cannot judge how good his German is.
Wie gut sein Deutsch ist. Man bekommt die Information, neue Kultur. One get the information. ये आपने कई बार पढ़ा है, यू आर ऑलरेडी अवेयर. A2 में भी पढ़ते हो, B1 में तो पढ़ा ही होगा ये सेंटेंस. इंफॉर्मेशन, टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द न्यू कल्चर, अबाउट Uber. Only one option, 3. Ein Kind eltern aus zwei verschiedenen Ländern kommen ist nett. एक बच्चा जिसके पेरेंट दो अलग अलग कंट्रीज से बिलोंग करते हैं, दो अलग अलग कंट्रीज से आते हैं, बहुत नाइस है. A child whose parents come from 2 different countries is nice. ये गेनेटिव है, रिलेटिव गेनेटिव बोलते हैं इसको. पूरा वीडियो बना हुआ है मेरे चैनल पे, आप जाके देख सकते हो. तो चाइल्ड से यहाँ पे हमें डिसाइड करना है चाइल्ड से. इसका आर्टिकल क्या होगा? दास. तो दास होगा तो डेसन. मोस्टली गलती क्या करते हो आप? इसको सोचते हो दिस इज नॉट डिसाइडिंग फैक्टर, दिस इज द डिसाइडिंग फैक्टर. बिफोर द ब्लैंक, ब्लैंक से पहले देखना है क्या है आर्टिकल. दास है, ये डेसन यूज करते हैं हम दास और डेयर में. अगर डी होता तो हम डेरन लिखते, बट ये डी नहीं, हमें यहाँ पे चेक करना है. अगर यहाँ पे फ्राउ होती है, डी फ्राउ, तो हम डेरन लिखते. तो ये आर्टिकल यहाँ पे ब्लैंक से पहले चेक करना है. तो ये था हमारा आज का सेशन. आई होप आपको पसंद आया होगा, तो लाइक कर देना. और नीचे इन्फॉर्मेशन है हमारे अपकमिंग बैचेस जो स्टार्ट होने वाले अप्रैल से. लाइव बैचेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, सब कुछ अवेलेबल है. जस्ट कॉन्टैक्ट अस एंड जॉइन अस लाइव विद द अफोर्डेबल फीस. Affordable German course means Aditya Sir German. We are providing affordable German classes for everyone. Join us and learn German with us. Thank you so much. Bis bald.